और फिर एक दिन अचानक से तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तो बस तब तक सब्र और शुक्र करते जाओ। So hey you guys, welcome back to another video, and this is another video of a bank aspirant life. So the very first thing I did was I made to-do list जिसकी मेरे पास clip नहीं है, but I have attached some photos at the end of the video so that you can get an idea of कि मैंने क्या क्या काम complete किए हैं उस list में से. So here I am doing the video lecture of CA. So these videos are usually of 1.5 hour. So today it was of 1 hour 28 minutes something. So what I personally like about this video, or I should say about sir, is जब वो पढ़ाते हैं तो जब कोई न्यूज़ आती है तो वो आसपास की जो भी न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड वो सारी बता देते हैं। तो मुझे तो अभी 3 ही दिन हुए हैं तो मेरे को तो इतना कुछ रिकॉल विकॉल तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो सारी न्यूज़ नई नई होती है। तो मेरे लिए तो वो बहुत सारी न्यूज़ हो जाती हैं, ऐसे 1.5 घंटे में वो 2 ढाई घंटे की न्यूज़ बन जाती हैं। बट या जो पहले से करते आ रहे हैं जिनको न्यूज़ का आइडिया है, सो दे विल श्योरली गेट बेनिफिट ऑफ इट। एंड सीए स्टार्टिंग से ही बहुत ही डरावना सा रहा है मेरे लिए, बिकॉज़ मेरी कभी इससे बनती नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा याद करना, मेमोराइज़ करना और रटना पड़ता है। प्लस टू अ पर्सन हु यूज्ड टू बी अनअवेयर ऑफ something happening around the country, around the world, and now that person need to be aware of everything. So that is going to be very challenging in itself. So I am quite scared about it, but yeah, let's see where it goes. And ये करते करते मेरे को बज गए थे 9, and I was feeling quite sleepy. Why? Because today I woke up quite early compared to the time I wake up. एंड उसकी वजह से फिर 9 बजे मेरे को स्लीपी सा भी लग रहा था। एंड एक तो मैं ये सीए वाली वीडियो देख रही थी, तो उस न्यूज़ की वजह से भी मे बी इम्पैक्ट पड़ रहा हो। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग अ शावर सो दैट आई फील फ्रेश्ड. So here after having shower, I was having my brunch at 9 a.m. So can you even imagine? That was not even a brunch. I don't know what was that. So at that time I was watching vlog of some aspirant, and being a bank aspirant, I am assumed to watch a vlog of bank aspirant, but no. I watch vlogs of SSC aspirant. I watch vlog of UPSC aspirant. I don't know why, but I do watch it. I feel inspired and motivated by watching their vlogs. So it's not just about what they are studying or what not, but what I feel is a motivation that they are studying, so I should too. And it doesn't mean that I don't watch vlog of bank aspirant. I do watch it. And then I started my PDF of Smart Kida mock drill, and that was I started from 9:45. And if any of you want to start with me, or if any of you want these PDF, so you can join my Telegram channel where I have shared so many PDF and study material plus these Smart Kida mock drill PDFs. So yeah, also there is a group where you can talk with your fellow bank aspirant. So for that you will get the link in the description. You can join if you wish. तो यहाँ पे जो मैंने PDF की थी वो 16 जैन की गई थी, और जो वीडियो की थी वो 17 जैन की गई थी। तो हुआ क्या, जो मैंने 16 जैन में पढ़ा था उसके कुछ कुछ पॉइंट्स जो थे, मतलब ऑब्वियसली जब दोनों सेम डे के होंगे, मतलब मे बी वो आगे पीछे हो गए होंगे वीडियोज़ और वो PDF, बट जो 16 जैन को मैंने पढ़े थे वो सारे के सारी चीज़ें 17 जैन वाली वीडियो में भी थे। तो आई एम थिंकिंग कि मुझे क्या करना चाहिए कि वीडियो वाला पहले होना चाहिए और PDF वाला बाद में होना चाहिए, सो दैट वो PDF करते टाइम पे मेरा वो रिवीजन हो जाएगा उन चीज़ों का। तो वीडियो में मैं उन्हें डिटेल में पढ़ लूँगी और PDF में मैं उन्हें ऐसे रिवाइज़ फॉर्म में उसको रिवाइज़ करती जाऊँगी। तो अभी मैं यही कैलकुलेशन लगा रही हूँ कि मेरे को कौन से दिन का करना है वीडियो वाला और कौन से दिन करना है PDF वाला,
ताकि वो ऐसे क्या बोलते हैं दोनों कोऑपरेट कर पाए आपस में, ठीक है, वीडियो और पीडीएफ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। And that PDF took me half an hour, and after that I started doing my editorial session. And there were so many questions about कि मैं editorial कैसे करती हूँ नहीं करती हूँ. So I have already told in previous videos, but let me tell you briefly that I don't follow any strategy. It's just I go with the flow. I start the editorial session, and then the vocab part I note it down, and then I read article. If I don't get it, then I take help from them in the video itself, and then the revision part of vocab and idiom and phrases which is shown at the end of the video. And after that I don't revise it daily, I revise it weekly. And even in revising it's not like I sit and start क्या बोलते हैं रटती नहीं हूँ, इट्स जस्ट कि मैं उसे रीड करती जाती हूँ, बिकॉज जितने बारी वो रीड होती हैं वो अपने आप ही रिकॉल मतलब रिटेन कर पाते हैं। मैंने जितने भी वर्ड्स अभी तक याद रखे हैं वो जस्ट और जस्ट रिपीटेशन की वजह से हुए हैं, क्योंकि जब मैं वीकली उनको बार बार रिवाइज़ करती रहती हूँ, बार बार रीड करती रहती हूँ, तो वो फिर ऐसे ना याद से आ जाते हैं। जब भी वो वर्ड देखो ना तो उसका मतलब फिर ध्यान आ जाता है। अब ये भी नहीं है कि हर वर्ड का मतलब याद आ जाता है, ऑब्वियसली भूलते भी हैं। एंड कुछ कुछ वर्ड्स के ट्रिक व्रिक बना करके खुद से कभी बना ली, कभी मैम की ट्रिक हो गई वो कर लिया, ऐसे करके बना लेते हैं। जैसे एक काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को वो पार्ले वाला ट्रिक। तो पार्लेज़ एक वर्ड है जिसका जो मतलब होता है वो होता है बातचीत करना। तो मैम ने जो ट्रिक दी थी वो ऐसे दी थी कि पार्ले बिस्किट होता है एंड बिस्किट खाते टाइम पे हम बातचीत करते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर द मीनिंग ऑफ पार्लेज़। सो ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स बनानी होती हैं जिनसे याद हो जाए वर्ड। जिसमें ट्रिक नहीं बनती उसमें ऐसे याद कर लो, ऐसे रिवाइज़ करते करते। Then it was time for revising rules of grammar, but I didn't revise today because I thought of starting it from the next week. क्योंकि पिछले ही हफ्ते मैंने ये 120 रूल्स पूरे के पूरे रिवाइज़ किए थे। सो आई थॉट कि इस वीक रिवाइज़ नहीं करूँगी, इस वीक सिर्फ इसके एरर एंड डिटेक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, एंड फिर नेक्स्ट वीक से दोबारा रिवाइज़ करूँगी और उसके फिर अगले हफ्ते नहीं रिवाइज़ करूँगी। सो दिस इज़ हाउ आई एम प्लानिंग टू डू इट। सो देखो होता क्या है ना कि दूसरों की जो स्ट्रैटेजी होती है वो सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए होती है, बाकी हमें अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही बनानी होती है। तो वैसे ही अपने आप ही हिट एंड ट्रायल लगा लगा के हमें चेक करना होता है कि हमारे लिए क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस टिल नाउ। ओके, सो देयर वाज समवन हु वाज आस्किंग मी कि मैं रूल्स ऑफ ग्रामर कैसे रिवाइज़ करती हूँ। सो लेट मी टेल यू। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे जैसे एक हफ्ते में ऐसे 6 दिन होते हैं जिस दिन मैं ऐसे रिवीजन मतलब ऐसे डेली सेम रूटीन होता है। संडे वाला एक अलग होता है जिस दिन मेरा वोकैब रिवीजन हो गया, और जो भी क्वांट्स या सॉरी जो भी प्री का जो भी टॉपिक होता है मतलब जो भी रिवीजन वाला पार्ट होता है वो उस दिन होता है। ये रूल्स ऑफ ग्रामर वगैरह ये सब तो मेरा ऐसे वीक डेज़ में चलता है। सो व्हाट आई डू इज़ कि 6 दिन है और 120 रूल्स हैं, तो 6 को 120 से डिवाइड करके 20 रूल हो गए। मैं डेली 20-20 रूल रिवाइज़ करती हूँ और उसके साथ में एरर एंड डिटेक्शन के क्वेश्चन लगाती हूँ। देन इट वाज टाइम फॉर स्पीड मैथ्स, एंड स्पीड मैथ्स मैं करती हूँ वायल मैथ्स की प्लेलिस्ट से, जो कि नवनीत सर की है। आर्डर 24/7 पे ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो डेली ये लाइव क्लास होती है, बट मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ और मैं 4-5 दिन पीछे हूँ रिकॉर्डेड में। सो या तो तब तक मैं ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक नहीं 2 पूछती हूँ। ओके, तो सबसे पहले कि जो जिस करंट अफेयर्स कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि 8th पे कमीशन आया है, एंड उसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनकी जो सैलरी है वो बढ़ने वाली है। सो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या इसमें बैंक एम्प्लॉयज़ भी इंक्लूडेड हैं या नहीं है। क्या बैंक एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। सेकंड क्वेश्चन कि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है बीचेस को, ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वो होता है जो उन्हें उन बीचेस को मिलता है पूरे वर्ल्ड में जो काफ़ी साफ़ सुथरी होती हैं और जो एक आइडियल बीच के एग्जांपल होते हैं, ठीक है, आइडियल बीच होते हैं, तो उन्हें मिलता है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। सो इंडिया में वो 2 बीच हैं ऐसे, एक है कोड़े में। सो मुझे उस बीच का नाम बताओ जो कोड़े में है, एंड मुझे नहीं पता मैं ये इस सिटी को अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ या नहीं, पर इसका कुछ ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन था आई गेस। तो ये 2 क्वेश्चन है जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और फिर मैंने किया स्पीड मैथ्स, और ये करते करते मुझे बज चुके थे 12, एंड दैट वाज द हाई टाइम कि मुझे ब्रेक लेना है, क्योंकि सुबह 8 बजे से नहीं, पौने 8 बजे से। ओके,
सुबह 7:45 से लेकर के 12 बज चुके हैं एंड एक ही जगह पर वैसे सुबह से लेकर के दोपहर हो गई, तो अब तो ब्रेक लेना बनता था एंड देन आई टुक अ ब्रेक ऑफ 2 आवर। सो हेयर आई एम आफ्टर ब्रेक। तो अब बज चुके हैं 2 एंड नाउ आई स्टार्टेड डूइंग द मेंस क्लास ऑफ रीजनिंग। और रीजनिंग में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं लेवल 2 कर रही हूँ, जो यस ऑफिसर पे अंकुश सर का कोर्स है, लेवल 2 ऑफ रीजनिंग ऐसा करके कोई नाम है, मतलब पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है पर ऐसे नाम है। तो इसकी आज लास्ट वीडियो थी, तो ये वाला कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा एंड नाउ आई हैव कंप्लीटेड एवरी कोर्स ऑफ द कंप्लीटेड सेक्शन। अब ऑन गोइंग कोर्स में मेरे को 2 कोर्स दिख रहे हैं, जिसमें से एक फाउंडेशन कोर्स है जो मुझे करने की नीड नहीं है क्योंकि वो सारे टॉपिक्स मैंने कर रखे हैं, और जो दूसरा वाला है वो मेंस वाला है, तो मैं दूसरा वाला करूँगी अब। एंड उसके बाद फिर मैंने किया था परफेक्शन की क्लास एंड ये वाला जो स्लॉट था ना, सेकंड स्लॉट, इसको मैंने पूरा मेंस ओरिएंटेड रखा था। इसमें मेंस की रीजनिंग की क्लास थी, मेंस की परफेक्शन की क्लास थी, मेंस की क्वांट्स की क्लास थी एंड ये मैंने ऐसे इंटेंशनली किया था, सारे मेंस की क्लास एक तरफ, ताकि ऐसे माइंडसेट मेरा बना रहे कि मेरे को मेंस की सारी क्लास लेनी है। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग टिल हेयर देन थैंक यू वेरी मच। एंड second thing, do comment me below I am here so that I can get to know that if you are liking this long vlog or not, because this is the very first or I guess second time that I am posting this long vlog। एंड इतना करते करते फिर मेरे को बज चुके थे 5:30 क्वांट्स की क्लास ख़त्म करने के बाद। तो फिर उसके बाद 5:30 बजे से मैंने ब्रेक लिया था 7 बजे तक। फिर 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मैंने किया था 2 मॉक का एनालिसिस। मैंने 2 मॉक दिए थे, जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि मैंने SBI PO SBI क्लर्क दोनों के मॉक दे दिए थे एक ही दिन में। तो उसकी जो कहानी है, जो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, वो जानने के लिए आप पहली वाली व्लॉग देख सकते हो। तो फिर मैं उसका एनालिसिस कर रही थी और उसका एनालिसिस करने में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि एनालिसिस कैसे करती हो। तो एनालिसिस वाला मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी और वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो एनालिसिस करने के बाद फिर एनालिसिस करने के बाद मैंने 9 से 10 खाने का ब्रेक लिया था एंड देन 10 टू 11 आई वाज एंड देन 11 टू 12 मैंने दिया था RBI ग्रेड बी का मॉक। एंड उसका तो मत ही पूछो, वो तो एकदम ही अलग ही कुछ कहानी थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था वो, तो मैं नहीं बता रही उसका स्कोर, बहुत बेकार था वो। Okay, so yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.